What makes you to choose this subject after Smiling Pinky, Smile Pinky? How you choose this project? Well, I mean, what storyteller wouldn't want to make films in India, right? I mean, 1 billion people and 1 billion stories. And I was just really moved when I found out about the work in the film, and also the number of girls. 47% of all girls in India marry before they're 18. And there's this program where girls like Monica are growing bottle gourds on their roof, and it's changing the dynamic in their family. All of a sudden, the girls are not a burden, they're an asset, and they get to decide when they are done schooling, when they're going to marry, when they're going to be mothers. And so I think it's really exciting to see the positive change that's happening, and it's really fun as a filmmaker to get to share a story that Indians can be proud of and that can leave us with some hope on problems that often seem so huge that we just want to throw our hands up. मोनिका, आपकी जो फिल्म है उससे आप अपने शहर की और अब देश की सभी लड़कियों के लिए एक आदर्श बन रही हैं। आप क्या संदेश देंगी जो अपनी और लड़कियों को? তোর যে এই সিনেমাটা তৈরি হলো, মেগান যেটা বানিয়েছে, সেটা তুই একটা সারা দেশের মেয়েদের কাছে একটা আদর্শ বা একটা রোল মডেল হয়ে গেছিস। তুই তাদের জন্য কি বলতে চাস, কি বলতে চাই? হ্যাঁ, আমি চাই যে মেয়েরা করুক, মানে করুক বাড়িতে যেটুকু মানে জমি থাকে, মানে হ্যাঁ কারো বাড়তি জমি থাকে, কারো বেশি জমি থাকে, কারো কম। আমার তো মানে যেটুকু মানে বাড়ি মানে যেখানে বাড়ি করেছি ওখানেই মানে যেটুকু করেছি ওটুকু দিয়ে আমি চাই যে অনেক করুক। আমার দেখি মেয়েরাও করুক, মানে মেয়েদের দেখিয়ে, মানে আমি যে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে যাওয়ার পরে করি অঙ্গনওয়াড়ি ট্রেনিং, মানে ল্যান্ডে স্যার একটা দাদার কাছে আমি শিখি, মানে বাগান আফটার মাই গার্ডেন, মানে বাগান তৈরি করার জন্যে ওই মানে বাগানটা করার জন্য যাই, বাগানটা করা শিখি। শেখার পরে করি, বাড়িতে এসে আমি নিজে করি, নিজে হাতে আমি গাছ করি, লাউ গাছ, কুমড়ো গাছ, সিম গাছ, ওইটা করার পরে ওই গাড়ার পরে ওইটা হওয়ার পরে আমি নিজে হাতে বাজারে যাই বিক্রি করে যে পয়সা হয় জমিয়ে রাখি, অথবা আমার তো লাগে খরচ, টিউশনির মাস্টারকে দেই, এমনিতে অনেক কিছুই কিনি। আমি চাই যে মেয়েরাও করুক। आप ट्रांसलेट तो करिए। Actually, what Monica said, that she joined a program organized jointly by Landesa, an organization, and government of West Bengal. So under that program she has learned how to develop kitchen garden, and she has started doing that, and that actually helped her to feel empowered and support her family. So she wants all the girls in the country to start doing that, growing vegetables, and as it happened in her life after her garden grew, so it should happen to other girls in the country, and they also start feeling empowered and encouraged. हमें अगर आपसे बात करें, आपने वुमेन्स के ऊपर काफ़ी सत्यमेव जयते में काफ़ी मुद्दों को उठाया, तो ये क्या 18 से जो नीचे जो वुमेन्स की शादियां हो जाती हैं, क्या उनके पास स्पेसिफिकली आप कोई मुद्दा उठाने वाले हैं ऐसा कुछ? देखिए, ये तो सीज़न हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यकीनन ये हमारा कानून भी है कि 18 से कम उम्र की लड़कियों को शादी नहीं करना चाहिए या ज़बरदस्ती उनकी शादी नहीं करानी चाहिए। ये कानून के ख़िलाफ़ है, और वैसे भी सेहत के हिसाब से या मानसिक तौर पे या जज्बाती तौर पे एक महिला जब सही उम्र पे आती है तभी वो माँ बनने के लिए तैयार भी होती है, एक परिवार चलाने के लिए तैयार होती है, अपनी ज़िंदगी आगे ले जाने के लिए तैयार होती है। तो बहुत कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए लड़कियों की। जी, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में कोर्ट ने एक लीगल नोटिस भी भेजी है जिसका आपको एक फॉर्म देना है 19 दिसंबर तक। तो एक्चुअली क्या है ये, और किस तरह से आप इसको देखते हैं कि लोगों को इंस्पायर कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं लोग खफा भी हो रहे हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। हमारे रिसर्च में जो सामने आया वो हमने देश भर के लोगों के साथ बांटा। अगर किसी को उससे तकलीफ़ है तो यकीनन वो भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और नोटिस अभी तक मुझे पहुंचा नहीं है और मैं इंतज़ार कर रहा हूं उस नोटिस का, ताकि मैं उसका जवाब भी दे सकूं। यकीनन और मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा कि हमने जो शो पे LGBT के सिलसिले में जो हमने शो पे जो चीज़ें हमने दिखाई, जो कही हैं, उसके साथ मैं 100% उसके साथ मैं सहमत हूँ। तो जो हमने कहा है हम उसके साथ ही खड़े रहे हैं
और अगर किसी को उससे आपत्ति है तो हम उससे बातचीत करेंगे, उसको हम समझाएंगे कि हमारा नज़रिया ऐसा क्यों है और क्यों मेडिकल साइंस ये मानता है कि ये कुदरती है, पैदाइशी है, होमोसेक्सुअलिटी या ऑल्टरनेट जो जेंडर प्रेफरेंस है ये पैदाइशी है और कुदरती है, ये हम क्यों मानते हैं। हम आपको समझा सकते हैं, जिसको भी ये बात जाननी है और तफसील में हम समझा सकते हैं और हम खुश हैं ये करने में, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात है तो सलमान ने आपको नॉमिनेट किया है जी, क्या हम आमिर को देख सकते हैं हाथों में झाड़ू लेकर कहीं सफाई अभियान में अगर? देखिए मैं तो वो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, तो ये अभियान तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मेरा ये हमेशा से रहा है, 10 साल नहीं उससे ज़्यादा, कचरा कभी नहीं फेंकना, या जहाँ आप, मैं तो देखता हूँ कभी कोई कुछ फेंक देता है तो मैं उठा लेता हूँ, जेब में रख लेता हूँ, बाद में मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ। तो जिस तरह से हमें अम्मी ने बड़ा किया है, यही सीख के साथ उन्होंने हमें बड़ा किया है, और इसी तरह तो मैं अपना जीवन आज तक जी रहा हूँ। बल्कि हमारा जो ऑफिस है वो टोटली वेस्ट फ्री ऑफिस है, जो हम ऑफिस में जो गीला कचरा होता है उसका हम खाद बनाते हैं, और तो हमारा ऑफिस तो टोटली जो एक वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका होता है उसको हम फॉलो करते हैं बाकायदा। आमिर एक तो कि आप ऐश्वर्या के साथ फिल्म कर रहे हैं और दूसरी ऐसे और दूसरी ये है कि आप मुन्ना भाई सीरीज में सर्किट बनना चाहते हैं, तो इन दोनों खबरों में मुन्ना भाई सीरीज़ में तो सर्किट में ज़रूर बनना चाहूँगा, अगर अरशद मुझे परमिशन दे तो, अरशद के परमिशन के बगैर नहीं। लेकिन वो मैंने संजू से कहा था, शूटिंग पर हम लोग मजाक कर रहे थे और मेरे दिल में ये बात आई कि यार संजू, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ संजू के साथ बड़ा मज़ा आया मुझे काम करके। तो मैंने उससे कहा कि यार मुन्ना भाई में काश मैं सर्किट होता तो मुझे अच्छा लगता। मैं हमेशा संजू को अपने एक बड़े भाई की तरह देखता हूँ, और जहाँ तक ये जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं मेरी फिल्मों की, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। जब मैं साइन करूंगा तो ज़रूर आप सबको बताऊंगा। आमिर एक सवाल है मेरा आपसे, हमेशा हमने पीके का जो जिस ट्रेलर देखा, आप जो आईब्रोज है रेस करके, आंखें बड़ी हैं, तो ये जो थ्रू आउट फिल्म में आप कितने देर रहते थे और पर डे शूट के हिसाब से प्रिपेयर कैसे किया आपने? प्रिपेयर तो बहुत किया मैंने, और जो मेरा किरदार है वो जब आप देखेंगे फिल्म तो आप समझेंगे कि क्यों ऐसा है। और मैंने पूरे फिल्म में आंख झपकी नहीं है, एक भी शॉट में आंख झपकी नहीं है। अगर घंटे के हिसाब से जोड़े तो कितने घंटे? तो घंटे नहीं, देखिए शॉट तो चलता है 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड, तो शॉट इतने लंबे नहीं चलते, तो शॉट के ड्यूरेशन तक उसका मुझे ध्यान रखना था। कान मेरे बाहर एकदम ऐसे बाहर आ रहे हैं, कान फिल्म के अंदर वैसे ही बाहर आते हैं, लेकिन हमने थोड़ा और कर दिया। और हाँ बस जवाब तो हो गया। हाँ, आज चिल्ड्रंस डे है और अगर हम चिल्ड्रंस डे की बात तो शाहरुख ने अब्राहम की छोटी सी झलक दिखाई थी हैप्पी न्यू ईयर। मेरे बच्चे फैसला करेंगे, मैं उनके लिए फैसला नहीं करता। तो जब वो फैसला करेंगे कि उनको करना है फिल्म, तो हम ज़रूर उनको सपोर्ट करेंगे। क्या उनका रुझान फिल्मों की तरफ है? शादी की बात पे आ जाते हैं। क्या आपके बच्चों के रुझान फिल्मों की तरफ है? हाँ? क्या आपके बच्चों के रुझान तो मुझे बताया नहीं अभी तक, तो देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बेहद खुशी है कि अर्पिता की शादी हो रही है, और सलमान का फ़ोन आया मुझे, और मैं 18 को उनके साथ रहूँगा हैदराबाद में। तो बेहद खुशी हो रही है मुझे, और मेरी शुभकामनाएं अर्पिता के साथ, उनके शोहर के साथ, और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस कपल को मिले। Amir, in recent interview, Shahrukh has showed his interest to work with you. So, are you? Why not? I would love to work with him. I would love to work. Why not? आमिर अंदाज अपना की रीमेक सीक्वल बनने की बात चल रही है और उसको री रिलीज की भी बात चल रही है। आपने भी कहा ये तो मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। बट आमिर क्या चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा कि इसका सीक्वल बने, और सलमान और मैं एक दफ़ा फिर अंदाज़ अपना 2 करें। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन वो राज संतोषी के हाथ में वो कहानी लिखें तो हम कर भी सकते हैं, अगर सलमान और मुझे पसंद आए तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग, क्योंकि ये कोई कमर्शियल फिल्म, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है जो बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ होगी या उसके पैसे बनेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग पूरी तादाद में यहाँ आए हैं, और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो मुद्दा है लड़कियों के एम्पावरमेंट का, इसको आप लोगों तक पहुँचाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
कि आप लोग आए और मेगन से बात की, मोनिका से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Okay, yeah, sure. I'll click with them first.